Good evening, student. Welcome back. We have been doing this subsystem of HRD counseling. We have done the first para in the last lecture. I have explained over here till first this para of counseling. So counseling is very essential instrument of HRD. It serves several purposes. I also explained in that lecture that why counseling is required, because you need to maintain a balance between your work life and your personal life. So if a person is not satisfied or having problem with his personal life, he will not be able to do justice to his work life also. So there are times when somebody is getting through problem with his wife or having some person sick at home, maybe his child, any person from his family or any other matter that is personal in nature and is having problem in that, then he cannot give his best for the organization. So in this context, HRD subsystem, that is counseling, works very handy. There are professional counselors being hired, and there are people, those who are working as counselor in an organization also. Those who relieve you of your stress and strain and give you some directions so that you are able to resolve your issues. So for this purpose, services of professional counselor need to be obtained. And sometimes there are in-house counselors also, those who counsel you or those who give some solution to your problems or suggest you in order to come out of those difficult circumstances. Because if you are not mentally, you can say, satisfied, mentally stable, mentally at equilibrium, mentally you are focused, and that can only happen if you are not having any baggages from your personal life. If you are carrying them, you will not be effective in your work life also. So in this context, counseling is important as it reduces employee turnover. Obviously, turnover का मतलब होता है जो एब्सेंटिज्म और लोग छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सारी चीजें रुकती हैं अगर प्रॉपर्ली काउंसिल किया जाए. एब्सेंटिज्म पे भी असर पड़ा. टार्डीनेस का मतलब भी वही है कि भाई लोग पंक्चुअल हो जाते हैं, टार्डीनेस वो हो जाती है. एंड हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग दी सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. ऑब्वियसली जब सबऑर्डिनेट जो है अपना वर्क ढंग से कर पाएगा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, तो नेचुरली जो सुपरवाइजर, जो सीनियर पर्सन है, कई बार वो भी काउंसलर की तरह एक्ट करता है, जो सुपीरियर बॉस होता है, और उसके कारण भी हम काफी समस्याएं हल हो सकती हैं. तो इट लिव्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन बॉस एंड द सबऑर्डिनेट, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ जूनियर्स एंड सीनियर्स, देयरबाय फैसिलिटेटिंग बेटर कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. ऑब्वियसली जब बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होगी, वो उसकी प्रॉब्लम को समझेगा, सोल्यूशन देगा, सजेस्ट करेगा, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के नतीजे के तौर पे वो अच्छा काम आउटपुट का दे पाएगा. थ्रू काउंसलिंग एम्प्लॉयज कैन अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड ओवरकम द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ देयर इग्नोरेंस इन द वर्क परफॉर्मेंस. इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग. कई बार इंसान समझ नहीं पा रहा कि मेरी प्रॉब्लम है आखिर क्या, मेरी स्ट्रेंथ वीकनेसेस है क्या. ऐसी सिचुएशन में भी काउंसलिंग काफी हेल्पफुल होती है, which makes them realize that what are their strengths and weaknesses, and accordingly the person can work upon it and come out of those difficult circumstances. You can realize his potential, his strengths, build upon those and give his best for the organization. And it also helps in avoiding stress. जब आदमी कॉन्फिडेंट होगा तो नेचुरली उसका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम आएगा. जब हम उलझन में होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं होता. तो काउंसलिंग एक बहुत ही हेल्पफुल सब सिस्टम ऑफ एचआरडी है जो कि एक्चुअली वर्क करता है डायरेक्टली विद रेस्पेक्ट टू अ एम्प्लॉय एंड एनहांसिंग हिज वर्क परफॉर्मेंस. नेक्स्ट सब सिस्टम इज क्वालिटी सर्कल. इट इज a small group of people doing same or similar work. They meet voluntarily together on regular basis for an hour a week during office hour under the leadership of their supervisor and trained to identify, analyze and solve some of the problems of their work and submit solution to the management. Let me tell you, quality circles was first introduced in Japan. This is a Japanese concept where people, let's say there is a group of 10 people working at the shop floor level. ठीक है, mechanic है, machine operators हैं. Now they have certain problem. So every week, per hour in a week, they sit together, they discuss their problems and they try to evolve those ideas in order to make their work more effective and resolve their work related problems or issues. ठीक है, by analyzing them, identifying them and giving solution to them. So this is a kind of brainstorming for them and they arrive at certain solutions which they submit to the management for implementation.
राइट। दे ऑल्सो इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन देमसेल्फ इफ पॉसिबल, अगर हो सकता है तो वो खुद भी करते हैं। इट इज अ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सिस्टम, जहां मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स साथ मिलकर चीजों को रिजॉल्व करते हैं, इश्यूज को सुलझाते हैं। इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट। ऑब्वियसली आप किसी की बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसकी बात को समझ रहे हैं, साथ ही साथ वो बंदा जो सोल्यूशन दे रहा है आप उसको भी अप्रेज कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को भी जांच रहे हैं। तो नेचुरली एक बॉन्डिंग बिटवीन, एक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट डेवलप होती है, क्योंकि आप दूसरे के प्रॉब्लम्स और इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं, उसके वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द हिडन पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑब्वियसली हम अपनी काम को जानते हैं और सोल्यूशन भी हमसे निकलेगा, और हम उस सोल्यूशन को सजेस्ट करते हैं मैनेजमेंट को कि इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो नेचुरली हमारे हिडन पोटेंशियल इस बात के लिए भी जांचे जाते हैं कि भाई हम अपने वर्क को अच्छी तरह से समझें, और जो अनफोल्डिंग आइडियाज हैं, यानी कि जो अनडिस्कवर्ड आइडियाज हैं, उनको भी हम उजागर करें, उनको भी लेके आए। तो इससे हमारा जो हिडन पोटेंशियल है वो भी खुल के सामने आएगा। Next is your role analysis. It is a set of expected behavior patterns attributed to a persons occupying a given position in unit. Every employee has a role to play. Everyone does not have to be consistent and regular in one role. Role कई बार बदलते भी रहते हैं। हर बंदे को एक अपनी पोजीशन, अपने प्रोफाइल में जो भी पोजीशन उसे दी गई है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंतर्गत एक रोल निभाना पड़ता है। एक टाइपिस्ट का रोल है टाइप करना, एक मशीनिस्ट का रोल है मशीन को ऑपरेट करना, एक मैकेनिक का रोल है, उसका अहम रोल है मशीन को ठीक करना, एक मैनेजर का रोल है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छी तरह मैनेज करके काम रहे। तो कहने का मतलब है हर एक का अपना एक रोल है, और उस रोल को निभाना पड़ता है, उस रोल को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करते हुए निभाना पड़ता है। एम्प्लॉइज हैव टू प्ले डाइवर्स रोल बोथ ऑन एंड ऑफ द जॉब। ऑब्वियसली ऑफ द जॉब भी हमें करना पड़ता है। वी आर ऑल्सो पेरेंट्स, वी आर ऑल्सो डॉटर, सन, वो सारे रोल्स भी हमें करने पड़ते हैं। एम्प्लॉय का भी किरदार हमें निभाना पड़ता है। टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इट इज एसेंशियल टू नो व्हाट रोल ही इज करेंटली प्लेइंग। कि भाई आप किस कॉन्टेक्स्ट में हो, अभी आप पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो या प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, कौन सा रोल निभा रहे हो, ये भी बहुत जरूरी है जानना। द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन वेरी विद द रोल आइडेंटिटी। भाई ये एक साधारण सी बात है, हम प्रोफेशनल लाइफ में कुछ और होते हैं, घर में कुछ और होते हैं, क्योंकि वहां हमारा रोल डिफरेंट है, घर में हमारा कुछ रोल और है, ठीक है। उसी तरह जब हम कुलीग्स के बीच में रहते हैं तो हमारा बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है, जब हम बॉस के सामने रहते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमारे वर्क कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे डिफरेंट रोल्स निभाने पड़ते हैं समय के साथ। सो रोल को एनालाइज करना भी एक सब सिस्टम है हमारे एचआरडी का, जिससे कि लोगों को बेहतर समझा जा सके कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको जांच परख रहे हैं, क्या उसके पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में या वर्क कॉन्टेक्स्ट में। रोल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। सो परिस्थिति के अनुसार रोल कई बार चेंज भी होते हैं, और बंदे को जांचना हमें उन बदलती हुई परिस्थितियों के अंतर्गत ही पड़ेगा। वी हैव टू अप्रेज द पर्सन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट सब सिस्टम इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। तो एचआर प्लानिंग ऑब्वियसली एक इंटीग्रल, एक अंदर का पार्ट है, essential part of business organization planning. It considered with detailed planning to establish the future human resource plan at every level by skill and category. लोगों की स्किल और कैटेगरी के अनुसार हमें अपनी एचआर इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि फ्यूचर रिसोर्सेज जो ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करते हुए देयर शुड बी रेगुलर सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एट ऑल लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड कैटेगरी. The object of HR planning is to have sufficient number of persons having adequate qualifications and skills to perform jobs available as per need of the organization. जब जहां पे जिस क्वालिफिकेशन, जिस स्किल और एबिलिटी के लोगों की जरूरत हो वो हमें अवेलेबल रहे. दिस इज द क्रक्स ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. नेक्स्ट सब सिस्टम इज प्रोक्योरमेंट प्लेसमेंट. लोगों को लाना, चाहे वो इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू. So it is one of the most important subsystem of HRD. Procurement is done through recruitment and selection. Vacancies are filled through these two methods. Placement is the process of assigning the procured candidate with suitable job. जो इस बंदे को हम सिलेक्ट करते हैं उसे अल्टीमेटली प्लेस करना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो अपनी खूबियों को, अपनी एबिलिटीज को पूरी तरह से अप्लाई कर सके. रॉन्ग प्लेसमेंट विल नेवर लीड टू अ गुड वर्क आउटपुट. ऑब्वियसली जो जिस काम के लिए अच्छा बेहतर कर सकता है हमें उसको उसी काम पे लगाना चाहिए. इट इज अ प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब टू ऑब्टेन द बेस्ट रिजल्ट. ऑब्वियसली दिस जस्टिफाइड. लास्ट
जो हमारा जो सब सिस्टम है बच्चों, वो है हमारा jobs are rotated amongst the employees to increase their knowledge and skill requirement for performance of their various jobs, and this is essential because during absence or leave of employee work should not suffer. So, हम सब जानते हैं मल्टीटास्किंग या जॉब रोटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लोग चले जाएंगे या देयर विल बी अ वैकेंसी विच इज फॉलिंग वैकेंट, एट दैट टाइम वी नीड to put somebody in his place, and in doing so the organization work should not suffer. So इन कारणों से जॉब रोटेशन भी एक इंपॉर्टेंट सब सिस्टम माना जाता है, और जिसके द्वारा किसी भी तरह की अगर बंदा इफ सम पोजीशन इज फॉलिंग वैकेंट, somebody is sick, or for any damn reason some place is getting vacant, then it is suitably managed by some other person, and through job rotation the person is already knows what kind of work it is, and he will be able to do justice to that particular assignment. So this ends with this topic. These two topics are done, that is HRD need and HRD subsystem. Further we will continue in next lecture.